So team, आज का agenda in today's session, what are we going to discuss? We are going to focus on word roots. तो कुछ का 1 जुलाई से सेशन रिज्यूम होने वाला है. Nonetheless, एक बात बताऊं, थोड़ा बहुत do you have understanding team, do you have understanding कि पैटर्न क्या है एग्जाम का? उसके बाद हम आज के एजेंडा को स्टार्ट करेंगे. थोड़ा बहुत आइडिया है what's supposed to be the pattern of the examination, what's supposed to be, the skills that you need to develop in terms of your examination. किन किन चीजों में फोकस करना है? कुछ आइडिया है टीम? कौन से एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है? VRC, चलो देखते हैं. Let's understand the game. Let's first of all understand the game. फिर अपना word roots डिस्कस करेंगे. Okay, now the important bit. When we talk about VRC section, team, टोटल कितने क्वेश्चंस होने जा रहे हैं? 45 क्वेश्चंस होने जा रहे हैं इंदौर में. Right now I'm only talking about what? Right now I'm talking about इंदौर. Sure, 45 क्वेश्चंस होने जा रहे हैं. टीम, एनी आइडिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कितने क्वेश्चंस हैं? कितने क्वेश्चंस आए इस बार? How many questions were there? Any idea? Guys, let's participate. तभी तो थोड़ा सा पता चलेगा, तभी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा. थोड़ा सा पहले पैटर्न को जान लेते हैं. टीम, the first thing that I'm telling you right now, yes, Satyam, there were 3 read and comprehension passages. 3 passages थे और कितने questions थे? A total of 18 questions were there on read and comprehension. A total of 18 questions were there on read and comprehension. बाकी aspects क्या थे? Team, बाकी aspects, of course, there is a bit of grammar. There was a bit of grammar. There was a bit of course, usage. Usage में fill in the blanks पे questions थे. As I said, grammar based questions थे. Apart from that, you have questions, a couple of questions on idioms. So team, let me tell you briefly about क्या है, थोड़ा सा जान लो. What is going to be the structure of the examination? इतना team समझो that 18 questions, 18 out of the 45 were based on reading comprehension. That means boss, reading skills तो improve कर रहे हैं. Team, अच्छा, और reading skills improve करने के लिए और क्या improve करना पड़ता है? सत्यम, कृष, रेयान, क्या improve करना पड़ता है reading skills improve करने के लिए? अगर रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ती है यार. बिल्कुल यार, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ती है. अगर फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे गए तो वर्ड्स को फिल करना है ना यार सेंटेंसेस में. इफ यू हैव टू फिल वर्ड्स इन सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग्स ऑफ दोस वर्ड्स. आया ना? आने चाहिए ना यार वो वर्ड्स के मीनिंग्स, अदरवाइज कैसे कर पाओगे? कूल. तो वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स आपका एग्जामिनेशन ना, देखो सभी आईएम्स धीरे धीरे अपने एग्जामिनेशंस को दे टर्न देयर एग्जामिनेशंस इनटू रीडिंग एग्जाम्स. दे टर्न देयर एग्जाम्स इनटू रीडिंग एग्जाम्स. और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको नजर आएगा. पहले ना एक पैसेज आता था, फिर वो 2 पैसेज हुए, अब 3 पैसेज हो चुके हैं. सो 2 passages were there, and now there are 3 passages. Earlier there used to be 2 passages. तो इस तरह ना बढ़ता जाता है किसका importance, reading का significance. Then there will be questions on team. Then there will be questions on what? Parajumbles. Parajumbles पे based questions होंगे. Sentence rearrangement, parajumbles. Questions para completion पे based भी होने जा रहे हैं. That means usage based questions will be there in the exam, which we call verbal ability. Team, verbal ability की बात चल रही है और reading comprehension की बात चल रही है. Sure, थोड़ा सा पहले आपको पैटर्न समझा रहा हूँ एग्जामिनेशन का, फिर of course okay, बहुत लंबा सा मैसेज, बहुत लंबा सा. I am putting in regular effort by practicing questions, reading daily, attempting mocks, but I struggle to improve my score consistently. I would be grateful if you guide me on. Definitely करते हैं बेटा, ऐसा करते हैं. Towards the end what I'll do, I'll open the lines of communication. I'll do that. और फिर you can raise your hand और फिर one on one हम चीज को डिस्कस करेंगे. Because what you are saying is of course relevant to everyone. How is it that we improve our performance? VRC में overall performance को कैसे improve करें? We will discuss that in detail. But towards the end करते हैं. आज थोड़ा सा
पहले अपना जरा यस वर्ड रूट्स वाला एजेंडा उठाते हैं और इसके बाद of course I will get into all this in great detail. I'll tell you what your strategy must be, how you can go about covering all these areas. So don't worry, we are going to discuss that in full detail. Tension na lo, I'm there, don't worry. Important by team. तो ये ना आपके पास different तरह के questions हैं. Then there are a few questions based on what? Incorrect usage और correct usage. बताना होता है word का usage कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है. दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं. इनकरेक्ट यूजेज, करेक्ट यूजेज बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन. श्योर. सो दैट्स बेसिकली द ओवरव्यू. दैट्स द ओवरव्यू. इन सब एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है, इन सब एरियाज पे फोकस करना है. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं टीम, वो जनरली किस तरह के होते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस होते हैं. इन जिपमैट, इन ऑफ कोर्स एन एग्जाम लाइक जिपमैट, वहां पे सेंटेंस एरर स्पॉटिंग भी होता है. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी होने जा रहे होंगे, बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे. एंड आई सेड ऑफ कोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा. तो तीन एरियाज पे काम करना है स्टूडेंट्स. दीस एरियाज नीड टू बी कवर्ड. लेट मी areas that you need to focus on. One area is grammar, the other area is vocabulary, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे अभी. और of course reading comprehension, and then we have the broad area. और वो broad area कौन सा है स्टूडेंट्स? वो broad area है जिसे आप इंग्लिश यूजेज भी कह सकते हैं, जिसे आप वर्बल एबिलिटी भी कह सकते हैं. श्योर. So these are the 4 areas that we need to focus on. And as I said, vocabulary is super important. कोई भी language सीखनी है टीम, you need to improve your word play. Word play को improve करना है. इतनी बात समझ में आ रही है? You have to improve your word bank. आपको अपने word bank में हर रोज कुछ ना कुछ words add करने होंगे. और अब आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं. How is it that we improve our vocabulary? Word roots team. अब आए हमारा, look at this happy word root tree. Look at this happy word root tree. टीम इतनी बात समझ में आ रही है कि word roots जो हैं, अब जरा ध्यान से देखते हैं होते क्या हैं. Now let's participate team. हाँ जरा जल्दी से बताओ word roots से क्या मतलब है. What are word roots? Let me know. vocabulary improve करने का ना एक मस्त तरीका होता है. वो क्या है कि आप word roots जाने, word roots से कनेक्ट करें. Yes. So what are word roots? Any idea? अभी कोई negative marking नहीं है team. So let me know. What do we mean by word roots? Guys, you have to respond. Unless you answer my questions, मुझे कैसे पता चलेगा यार कि तुमको समझ में आई या नहीं बात? जल्दी बताओ. हाँ जी. Word roots क्या है? Word roots students वो basic forms है. देखो जरा. Word roots are the basic forms from which words originate. तो वर्ड्स का ओरिजिन जो है इन बेसिक फॉर्म से हुआ है. उन बेसिक फॉर्म्स को हम क्या कह रहे हैं? आई एम कॉलिंग दोज बेसिक फॉर्म्स वर्ड रूट्स. श्योर. तो वर्ड रूट्स जो हैं वो बेसिक फॉर्म्स हैं जिनसे फिर वर्ड्स ओरिजिनेट होते हैं. ओके. नाउ द पॉइंट इज, क्या हम इन वर्ड रूट्स से मदद ले सकते हैं? क्या हम इन बेसिक फॉर्म्स को जान के अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं यार. उसके लिए थोड़ा सा ये जानो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ना बहुत सारे वर्ड रूट्स लैटिन से लिए गए हैं. अराउंड 70% टीम, अराउंड 70% वर्ड रूट्स आर फ्रॉम लैटिन. अराउंड 20-25% वर्ड रूट्स आर ऑफ ग्रीक ओरिजिन. 20-25% have a Greek origin. And the remaining, there is a bit of टीम बाकी लैंग्वेजेस से भी of course हमने वर्ड रूट्स लिए हैं. Modern English जो है, it's primarily a borrowed language. Remember that it's a borrowed language. थोड़ा थोड़ा उधार लिया कहाँ से? लैटिन से. थोड़ा थोड़ा ग्रीक कल्चर से, ग्रीक माइथोलॉजी से. And the remaining a bit of French, a bit of German, a bit of Italian, even a bit of Hindi. वो remaining 5 to 10%, whatever is left, वो सब क्या है? वो सब remaining word roots हैं. अब टीम, as I said, वर्ड्स पे फोकस करना है, वो बेसिक फॉर्म्स जानने हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं.
अब सॉम का मतलब क्या है, एनी आइडिया? अच्छा, बिफोर वी डिस्कस सॉम, इस वर्ड का जरा मतलब बताओ टीम. व्हाट इज इट दैट वी मीन बाय दिस वर्ड इनसोम्निया? हाँ जी, अब जरा जल्दी जल्दी बता दें. लेट्स गेट स्टार्टेड. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. आई एम श्योर यू नो द वर्ड. इनसोम्निया सबको आता है यार. समथिंग रिलेटेड टू स्लीप. शाबाश विहान, बिल्कुल बिल्कुल. सॉम इज द वर्ड रूट फॉर स्लीप. विहान नोज दैट. गुड. सॉम का मतलब क्या टीम? स्लीप. नोट करो. अच्छा, अगर मैं किसी इंसान को, दिमाग लगाओ, अगर मैं किसी इंसान को इनएफिशिएंट कहूं, तो टीम वहां पे इन, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इफ आई कॉल समवन इनएफिशिएंट, व्हाट डज दैट मीन? इन, व्हाट डज इट इंडिकेट? व्हाट डज इट शो? इन. अब मैं इन में इंटरेस्टेड हूं. इन तो बता दो यार. इन नेगेटिव है, बिल्कुल उदित. इन का मतलब नेगेटिव है. इन मीन्स नॉट. इन मीन्स नॉट. श्योर. तो अच्छा, उदित भी है हमारे ग्रुप में. वी हैव उदित गोयल. यार मस्त है. ठीक है, यू आर द नेम सेक ऑफ उदित सर. बहुत बढ़िया. ठीक है, शाबाश. सो वंडरफुल. तो इन मीन्स नॉट, नेगेटिव है. इनसोम्निया, नॉट एबल टू स्लीप. स्टूडेंट्स, नॉट एबल टू स्लीप. स्लीपलेसनेस, लैक ऑफ स्लीप. स्लीपलेसनेस, लैक ऑफ स्लीप. यू आर नॉट एबल टू स्लीप. इतनी बात समझ में आई? इन का मतलब नॉट. अब नाउ टीम, एक हमने वर्ड सीख लिया, सॉम. नोट करो, नोट करो. सॉम इज द वर्ड रूट फॉर स्लीप. अच्छा, कई बार ना यार कोई चीज बहुत बोरिंग होती है, बहुत बहुत बोरिंग होती है. आप ना उसको देख के सो जाते हो. आप उसको देख के सो जाते हो. कई बार आप बोलते हो ना, यार फिल्म इतनी बोरिंग थी, फिल्म इतनी बोरिंग थी, मेरे को तो नींद आ गई. थिएटर में गया, फिल्म इतनी बोरिंग थी, 15 मिनट देख के मेरे को नींद आ गई. उस वाली बोरिंग चीज को, समथिंग दैट पुट्स यू टू स्लीप, सोमनोलैंड ना आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो. देखो, दो आइडियाज हैं. सॉम का मतलब क्या है टीम? सॉम मीन स्लीप. सो यू आर फीलिंग स्लीपी. एक मतलब क्या है टीम? नोट करो. somnolent is when you are sleepy. If you are feeling sleepy, you are feeling drowsy. आपको नींद आ रही है. इतनी बात समझ में आई टीम? तो कौन सा वर्ड लिखेंगे? कौन सा वर्ड लिखेंगे? somnolent. You are feeling sleepy, you are feeling dull. हाँ है ना, नींद आ रही है. और वेरी सिंपली, something that puts you to sleep. A round of thumbs up, a round of thumbs up from everyone अगर ये बात समझ में आ गई तो, कि सॉम का मतलब स्लीप है. A round of thumbs up from everyone. हाँ जी, give me a thumbs up quickly team. चले आगे, समझ में आ रहा है सब कुछ? तो somnolent, सॉम वाला वर्ड रूट, सॉम वाला वर्ड रूट, स्लीप वाला वर्ड रूट, वो चीज जो आपको यस सुला दे, वो भी somnolent. और आप स्लीपी फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग somnolent, यू आर फीलिंग ड्राउजी, नींद आ रही है. पक्का? ओके. एक बात बताओ, होल्ड ऑन. वो इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसके लिए कौन सा वर्ड होता है टीम? कौन सा वर्ड होता है? लॉट. आपका एक दोस्त होता है ना, तो हर थोड़ी देर में चुप कराना पड़ता है और बोलता है, यार कितना बोलेगा. उस इंसान को तुम क्या कहते हो? जल्दी जल्दी बता दो, जो बहुत ज्यादा बोलता है. शाबाश. सब टॉकेटिव बोलते हैं. उदित ने बिल्कुल बिल्कुल सही वर्ड बताया. लोक्वेशियस. बेटा, व्हाट्स द वर्ड? द वर्ड इज लोक्वेशियस. हाँ बयान, वही टॉकेटिव है. देखो, टॉकेटिव ना सस्ता वाला वर्ड है और लोक्वेशियस महंगा वाला वर्ड है. टीम, इतनी बात समझ में आ रही है? लॉक्यू. असल में लॉक्यू कनेक्ट कर पा रहे हो? LOQU लॉक्यू, या LOCU लॉक्यू, या लॉक्यूट. ये सारे कौन से वर्ड्स हैं? लिसन टू मी केयरफुली. ये लॉक्यू का मतलब टू स्पीक एंड टू टॉक. टीम, नोट डाउन. To speak and to talk. These are the word roots for speaking and talking. Cool. Is that clear, team? Are you able to connect with that? Lock you, bolna, speaking, talking. Shabash, shabash. Okay. तो loquacious ज्यादा बोलने वाला, loquacious ज्यादा बोलने वाला. अच्छा, hold on. यार कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं. They can speak very well. They are gifted orators. उनके लिए लॉक्यू वाला वर्ड, जिसमें लॉक्यू आ रहा हो, बहुत अच्छा बोलते हैं. एनी आइडिया टीम? एनी आइडिया? इंसान बहुत अच्छा बोलता है. ही इज एबल टू स्पीक रादर वेल.
तो वो वाला दोस्त आपका वो वाला दोस्त जो हर डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, सारा दिन स्टेज पे चढ़ने का मौका ढूंढता रहता है कि कोई मुझे स्टेज पे बुला लो, कोई मेरे से स्पीच दिलवा लो, कोई मेरे से डिबेट में पार्टिसिपेट करवा लो। असल में बोलता बहुत अच्छा है। वो कौन है टीम? नोट करो, वो एलोक्वेंट है। गाइस, व्हाट इज इट दैट वी मीन बाय दिस वर्ड एलोक्वेंट? नोट डाउन। Someone who is good at public speaking, someone who has what we call, the ability to speak rather well. इतनी बात समझ में आ रही है टीम? हाँ है ना? तो आजकल ऐसे लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? आजकल ऐसे लोग बाबा बन जाते हैं, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। बाबा बन जाते हैं। क्यों? पीपल लाइक लिसनिंग टू देम, दे स्पीक वेरी वेल। तो ये अपना एक पैरेलल करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। इज दैट क्लियर टीम? एलोक्वेंट में लॉ क्यों आ रहा है? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। अच्छा, डिबेट और एलोक्यूशन कंपटीशन। रिमेंबर, एलोक्यूशन इज व्हाट टीम? नोट करो, एलोक्यूशन। कैन यू रिलेट टू दैट? एलोक्यूशन मीन स्पीच। नोट कीजिए, एलोक्यूशन स्कूल में कहा जाता है ना कि यार नेक्स्ट वीक debate and elocution competition is going to be organized. We are going to organize a debate and elocution competition next week. So what is elocution? Elocution is speech. Is that clear? LOQ आ रहा है टीम? LOCU LOQ मतलब क्या? मतलब कौन सा? स्पीच वाला। पक्का? 100% clear? A round of thumbs up from everyone. A round of thumbs up quickly. हर सब बातें समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉन्ग का मतलब क्या था टीम? जल्दी से बता दो। सॉन्ग क्या था? नींद वाला, स्लीप वाला। सो नाउ होल्ड ऑन। नाउ टीम, शाबाश सत्यम, बिल्कुल, you're absolutely right. Now I'm writing a word, you have to tell me its meaning. और अब तुम्हारे पास ये नॉलेज है, तुम शायद ट्राई कर सकते हो। सॉन्ग भी है इसमें और लॉक्यू भी है। Now can you synthesize the meaning? Now can you come up with the meaning team? दिमाग लगाओ। लॉक्यू भी तुम्हें आता है यार, और सॉन्ग भी तुम्हें आता है। सोचो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है टीम। बताओ। वेरी गुड, सत्यम हैज आंसर्ड। व्हाट अबाउट द रेस्ट? सत्यम हैज आंसर्ड, गुड। सोचो, दिमाग लगाओ यार, ये आता तुमको, कर सकते हो जाएगा। सोमनोलोक्वेंस टीम, सोम का मतलब स्लीप, लॉक्यू का मतलब बोलना, टॉकिंग, स्पीकिंग। सो व्हाट इज सोमनोलोक्वेंस? नींद में बोलना, sleep, talking. Note down. Somniloquence is sleep, talking. When you talk while asleep, when you talk while you are asleep, नींद में बोलना. Somniloquence, sleep, talking. Does that make sense? Is it clear? इतनी बात समझ में आई? पक्का? Fantastic. अब जरा देखो, थियो टीम, नोट डाउन, थियो। ये वाला ना वर्ड रूट तुम मेरे को बता सकते हो और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, और ये वर्ड तुम्हें आता भी होगा जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। टीम, एथीस्ट कौन होता है? एथीस्ट कौन होता है? जल्दी से बता दो। वेरी गुड, डिसबिलीवर ऑफ गॉड। शाबाश, बिल्कुल सही। सो थियो टीम, एथीस्ट थियो रेफर्स टू गॉड। दिमाग लगाते हैं तो एथीस्ट वो हिंदी में जैसे नास्तिक कहते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करता है, भगवान में विश्वास नहीं है इसका, वो कौन है? वो एथीस्ट है। डज नॉट बिलीव इन गॉड, doesn't believe in God, doesn't believe in God, that individual is atheist. इतनी बात समझ में आई टीम? doesn't believe in God. Now listen to me carefully. ध्यान से सुनो। theo is the word root for God and religion. Theo are the word roots for what? God and religion. God और religion को दिखाने वाले words कौन से हैं टीम? थी और थियो। कनेक्ट हो रहा है? बात समझ में आ रही है? तो एथीस्ट
एथीस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। ये अ पहले आ गया, ये थी के पहले आके थी के पहले आके क्या दिखा रहा है? नो, नॉट। व्हाट डज इट शो? इट शोज नो, नॉट। वेरी गुड। उदित, थीस्ट हो जाएगा बेटा बिलीवर, थीस्ट हो जाएगा बिलीवर, बिलीव करता है, ये believes in God. This one believes in God. Atheist does not believe in God. पक्का? श्योर? अच्छा, कितनों ने तो सीरियसली बता दो, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स कितनों ने पढ़ी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड इकोनॉमिक्स? थम्स अप करने से मेरे को पता थोड़ी चलेगा, थम्स अप करने से मेरे को पता थोड़ी चलेगा किसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो तो बताओ। Okay, so that has read a bit of economics. That's good. That's fantastic. अच्छा, तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाला वर्ड तुमने पक्का सुना होगा। इकोनॉमिक्स में क्या वैसे भी सुनने को मिल जाता है, मोनोपोली। मोनो का मतलब क्या होता है टीम? नोट करो, मोनो मीन्स वन, सिंगल। नोट करो। पॉली का मतलब क्या? मैनी, मल्टीपल, बहुत सारे। पॉली, मैनी, मल्टीपल, बहुत सारे। Does that make sense? पॉली, मैनी, मल्टीपल, बहुत सारे। अब दिमाग लगाते हैं। मोनो का मतलब वन, सिंगल। पॉली का मतलब मैनी, मल्टीपल, बहुत सारे। तो मोनोपोली क्या है? इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक्स वाला। असल में लैंग्वेज है, असल में वर्ड रूट्स है टीम। देयर इज ओनली वन सेलर, देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर। मार्केट में सिर्फ एक फर्म है, मार्केट में सिर्फ एक प्रोड्यूसर है, सिर्फ एक फर्म है, और बायर्स बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी बायर्स, देयर आर मल्टीपल मेनी बायर्स। ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को, ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे कंपैरेटिव स्ट्रक्चर को टीम हमने क्या कहा? व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दैट अ मोनोपोली। इतनी बात समझ में आई? अब मैं क्या दिखाना चाह रहा था तुम्हें? इस वर्ड रूट के साथ फेमिलियर करवा रहा था। टीम कौन सा? पॉली। नाउ कैन यू टेल मी? होल्ड ऑन, जरा देखते हैं। पॉलीथीइज्म क्या है टीम? पॉलीथीइज्म, polytheism, what do we mean by that? Polytheism, any idea? Polytheism, अब तो दिमाग लगा लो, सोचो। पॉली का मतलब मैनी, मल्टीपल, बहुत सारे। ओके, व्यान सेज मैनी गॉड्स। सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। व्यान देखो बेटा, रिलीजन, मैनी पीपल हु बिलीव इन वन रिलीजन, थोड़ा सा अलग है। देखते हैं उधर क्या मीनिंग है। नाउ लेट्स सी। अच्छा, ये वर्ड्स नोट कर दिए? Shall I clean the screen? Guys, have you noted the words? Shall I clean the screen? जल्दी जल्दी बता दो, नोट कर लिया है ना? ओके, बढ़िया बढ़िया। नाउ आई एम क्लीनिंग द स्क्रीन। इंपॉर्टेंट बात टीम, अब जरा देखो। पॉलीथीइज्म, पॉली मैनी, बहुत सारे। जब आप बहुत सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करते हैं, बिलीफ इन मैनी रिलीजन्स, एक्सेप्टेंस ऑफ मैनी रिलीजन्स, rather respect for many religions. When there is respect for many religions, you believe in many religions. आप सभी धर्मों को, बहुत सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। Respect for multiple religions, respect for multiple religions, many religions. Are you with me? Does that make sense? There are multiple religions. When you respect many religions, what is that team? We call that theism. हाँ है ना? Sure. Respect for many multiple religions. अब दिमाग लगाओ। पॉलीथीइज्म में थियो क्या था? रिलीजन वाला। एथीस्ट में थियो क्या है? तीन गॉड वाला। ओके, नाउ होल्ड ऑन, आई एम राइटिंग वन मोर वर्ड and you have to tell me what it means. Team, the word is thearchy. हाँ, ये भी वही है। Theo. It's still the same thing. What is thearchy? Take a guess. Make a guess. You can also take the help of the internet. आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Look for that, for this information.
टीम लेट्स पार्टिसिपेट। इंटरेक्ट नहीं करोगे तो बात नहीं समझ में आएगी, फिर मजा नहीं आएगा, फिर वन वे ट्रैक हो जाएगा, मैं बोलता रहूंगा तुम सुनते रहोगे। पार्टिसिपेट करना है यार। रिच कृष ऐसा क्यों? TR की मतलब रिच ना ना, रिच नहीं, गॉड वाला ही एंगल है, रिलीजन वाला एंगल है, गॉड वाला एंगल है। गॉड वाला एंगल क्या है देखते हैं, कृष समझते हैं। अच्छा नोट करो, गाइस नोट डाउन, ये जो बाद में लिखा हुआ है ना आर्की, आर्की इज द वर्ड रूट फॉर, नोट डाउन, आर्की इज द वर्ड रूट फॉर गवर्नमेंट और रूल। गवर्नमेंट और रूल, आर्की क्या दिखाता है? गवर्नमेंट दिखाता है, रूल दिखाता है, थी हो क्या दिखाता है? गॉड दिखाता है, इट शोज गॉड एंड रिलीजन। सो व्हाट इज थियार्की? गवर्नमेंट बाय गॉड्स, नोट डाउन, गवर्नमेंट बाय गॉड्स, गॉड्स रूल, गॉड्स रूल, गवर्नमेंट बाय गॉड्स। इतनी बात समझ में आई? सो हर रिलीजन में, हर कल्चर में, आई शुड से, in every culture, see, human beings have tried to conceptualize, human beings have tried to figure out what's God's rule going to be like. What if God himself, what if God himself were to preside over the people? अगर प्रभु खुद सरकार चला रहे हो तो किस तरह की सरकार होगी? In Hindu religion we call it Ram Rajya, we call it Ram Rajya. So Ram Rajya is our version of thearchy. So it's an imaginary idea, it's an imaginary concept, it's an imaginary concept where you try to visualize what God's rule is going to be like. What if God himself were to govern? तीन बात समझ में आ रही है? तो imaginary है ये चीज, it's a figment of our imagination कि अगर भगवान खुद, प्रभु श्री राम खुद अयोध्या पे शासन कर रहे हैं तो फिर that sort of thing. Does it make sense? A round of thumbs up, a round of thumbs up. समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। टीम अब दूसरा देखते हैं, गॉड रिलीजन। अगला वाला क्रोनोस। अच्छा, कौन सी डिजीज को क्रोनिक डिजीज कहते हैं? कौन सी डिजीज को क्रोनिक डिजीज कहते हैं? वो जल्दी ठीक हो जाती है, बहुत टाइम लेती है? टीम जल्दी ठीक हो जाती है, बहुत टाइम लेती है? जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी ठीक हो जाती है, बहुत टाइम लेती है? बहुत टाइम लेती है, शाबाश शाबाश। क्रोनोस, क्रोनोस इज द वर्ड रूट फॉर टाइम। वेरी गुड सत्यम, बहुत लंबा टाइम लेती है। टाइम असल में, नोट करो टीम, क्रोनोस इज द वर्ड रूट फॉर टाइम। ग्रीक माइथोलॉजी में ना, अब ध्यान से सुनो, ग्रीक माइथोलॉजी में there is this god of time and the name of that god is Kronos. So Kronos is the god of time. ये ग्रीक माइथोलॉजी से आया है, ग्रीक वर्ड रूट है। क्रोनोस ग्रीक माइथोलॉजी में समय के देवता हैं। श्योर? तो क्रोनोलॉजी, अब देखो, रिमेंबर स्कूल में आपने बहुत बार ऐसा काम किया होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। इन कुछ होता था ना, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैन यू रिकॉल दैट? याद है? फिर बहुत सारी बैटल्स लिखी होती थी, बहुत सारे इवेंट्स लिखे होते थे, तो उन बैटल्स को, उन इवेंट्स को किस में अरेंज करना था? वो कब हुए? सीक्वेंस, सीरीज, शाबाश, ये आया मैथ वाला जवाब उधर, सीक्वेंस सीरीज, बिल्कुल। तो टाइम सीक्वेंस, शाबाश, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो क्रोनोलॉजी, टीम नोट डाउन, क्रोनोलॉजी का एक मतलब क्या? क्रोनोलॉजी का मतलब टाइम सीक्वेंस। श्योर? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा ऑर्डर? तो आपको दिया होता था कि यार फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फिर कुछ इवेंट्स दिए हुए थे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है,
इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था. रिमेंबर, कैन यू रिकॉल ऑल दैट? टीम हिस्ट्री में करना पड़ता था. सो टाइम सीक्वेंस, व्हेन डिड all the events take place, in which order, in which, what was the time sequence? Are you with me? Does it make sense? तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, तो इस तरह लिखा होता था. अब जरा दिमाग लगाते हैं. होल्ड ऑन टीम, यही क्रोनो नोट करो. सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस. हाँ जी, सिंक्रोनस. यहां पे भी क्रोनो आ रहा है, यहां पे भी क्रोनो आ रहा है टीम. सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनस, सेम टाइम. नोट करो टीम, सेम टाइम. अगर कोई चीज बिल्कुल दूसरे चीज के साथ मैच करे, जेंजी बताइए आ गई है, वाइब मैच हो गई. आप लोग यही कहते हो ना, वाइब मैच हो गई. आप लोग सेम वेवलेंथ पे हैं, आप लोग सेम वेवलेंथ पे हैं. पीपल ऑफ माय जनरेशन, हम वाइब कम यूज करते थे. हम ये कहते थे, यस वी आर इन सिंक, यस वी आर इन सिंक. दैट मींस वी आर इन सिंक्रोनाइजेशन. टीम बात समझ में आ रही है? तो हम लोग अगर सिंक में है, सिंक्रोनाइजेशन में है, दैट मींस हमें तालमेल बहुत बढ़िया है, कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है. वी डू एवरीथिंग प्रैक्टिकली at the same time. We are in sync, we are in synchronization. इतनी बात समझ में आई? यहां पे भी क्या था? क्रोनो, टाइम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी, क्रॉनिक, सिंक्रोनस. कूल. अच्छा, अब एक टेढ़ा वाला वर्ड दूं, तुमने मेरे को इसका मीनिंग बताना है. वो टेढ़ा वाला वर्ड कौन सा है? वो टेढ़ा वाला वर्ड है टीम, एनाक्रोनस. नोट करो. और तुमने, you can take the help of the internet. You have to tell me what it means. ढूंढें, फाइट मारें, दिमाग लगाएं. The word is anachronous. और यहां पे भी क्रोनो आ रहा है. Now I am expecting answers from all of you. जल्दी से बताओ. And don't wait for others to find the answer. Team, do it yourself. ढूंढो, बताओ. Anachronous, what does it mean? Okay. Udit says different time. थोड़ा सा और रिफाइन करो उदित. The rest of you, सत्यम, क्रिश, हाँ जी, बताएं. What is anachronous? वेरी गुड व्यान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. यही मतलब है. अब व्यान, उदित, टाइम वाला कनेक्शन नजर आ रहा है बेटा? टाइम वाला कनेक्शन नजर आ रहा है? वेरी गुड. बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट टाइम और डिफरेंट एज. बिल्कुल सत्यम, डिफरेंट टाइम पीरियड. असल में पता है क्या होता है? अगर किसी चीज को एनाक्रोनस कहा जाए, दैट मींस इट डज नॉट मैच. नोट डाउन, डजंट मैच द टाइम फ्रेम, डजंट मैच द टाइम फ्रेम. वो चीज जिस टाइम जोन में है, वो चीज जिस टाइम जोन में है, उस चीज का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, वो चीज मैच नहीं कर रही उस टाइम फ्रेम को, तो वो क्या है? इस तरह कहा जाता है. नोट डाउन टीम, अ मिसफिट इन टाइम, अ मिसफिट इन टाइम. मिसफिट का मतलब क्या हो रहा है? प्रॉपर्ली फिट हो रहा है या प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा है? टीम, मिसफिट का मतलब क्या है? प्रॉपर्ली फिट हो रहा है, प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा है? जल्दी जल्दी बताओ. मिसफिट नहीं हो रहा है ना? गुड गुड, नहीं हो रहा है. A misfit in time. So a misfit in time, what do we call that? Anachronous. Exactly. नहीं हो रहा है. बिल्कुल सत्यम, शाबाश शाबाश. अब लग रहा है गाड़ी ट्रैक पे आ गई है. क्रोनो, टाइम, वो जिस टाइम फ्रेम में है, उस टाइम फ्रेम के साथ, उस टाइम जोन के साथ मैच नहीं कर रहा है. It's a misfit in time. Cool. Imagine. वो समझ सकते हो यार? जिस ये चीज एनाक्रोनस है. थिंक ऑफ एन एग्जांपल. टाइम के साथ मैच नहीं कर रही है. हाँ जी, बताएं.
Team, give me some example. Shall I give you a couple of examples? आज के ज़माने में, hold on. How is it that you listen to music? Students, how is it that you listen to music? Tell me. How is it that you listen to music? कहोगे इसमें क्या है? किसी ऐप पे लॉग इन कर लेते हैं, फोन से सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश व्यान. यू लिसन टू म्यूजिक यूजिंग योर स्मार्टफोन. आप आईटी पे लॉग इन कर लेते हो या कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो, समथिंग लाइक स्पॉटिफाई, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यार व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, होल्ड ऑन, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कुछ नहीं होता था ऐसा. हमारे पास ना वो कैसेट प्लेयर होता था, एंड देयर यूज्ड टू बी दीस कैसेट्स. तुमने देखी है मैग्नेटिक टेप वाली कैसेट? Have you seen मैग्नेटिक टेप वाली कैसेट? कभी देखी है? मतलब कैसी नजर आती है? अच्छा, गुड गुड, शाबाश. उदित ने देखी नहीं, इमेजिन. कृष्ण देखी है, चलो वंडरफुल. अगर आज के जमाने में मैं, अरे सत्यम ने देखी नहीं है. देखो इतनी जल्दी ना टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है. When I was growing up, team, you know, we used to purchase cassettes. और उन कैसेट्स में क्या होता था? उन कैसेट्स में गाने होते थे, ठीक है. तो वो कैसेट प्लेयर खरीदना पड़ता था. उसमें आप वो कैसेट डालते थे और उसको ऑफ कोर्स कैसेट से आप गाने सुनते थे. अगर आज के जमाने में मैं वो कैसेट प्लेयर लेके गाने सुनने निकल पड़ूं, तो लोग कहेंगे ये कौन से जमाने का पुराने जमाने का मॉडल आ गया है, ये कौन से जमाने का पुराने जमाने का मॉडल आ गया है. सो कैसेट प्लेयर is an anachronous entity. A cassette player is an anachronous entity in today's time, where you listen to music on your phones, where you listen to music by, of course, logging into an app. Yes or no? तो वो क्या है? That is anachronous. A cassette player, हाँ vintage, बिल्कुल ध्यान. vintage ना वही पुराने जमाने वाला होता है. शाबाश. vintage is something, जैसे आपने ना सुना होगा विंटेज कार रैली. ये सुना है कभी टीम? विंटेज कार रैली जिन लोगों के पास, वेरी गुड, शाबाश. विंटेज कार रैली, हाँ ये वाला एग्जांपल कनेक्ट हो गया. तो वो जो पुराने जमाने वाली लोगों को ना, पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्राइड. वो पुराने जमाने वाले मॉडल्स, लेट्स से विंटेज कार में कोई अपनी बीटल ले आएगा, बीटल 69 मॉडल, हाँ है ना. फोक्सवैगन का एक पुराना वाला मॉडल ले आएगा. तो वो सब क्या है? फरारी के अर्ली मॉडल्स ले आएगा उस विंटेज कार रैली में. एग्जैक्टली वैन स्टाइल होता है. आप कह रहे होते हो कोई चीज पुरानी है, गोल्ड वाला एलिमेंट विंटेज में, दैट यू विश टू प्रिजर्व दैट थिंग व्हिच वाज ओल्ड एंड स्टाइलिश. एनाक्रोनिस में आप उस ये पुरानी हो गई है, ये अब इस टाइम फ्रेम को मैच नहीं करती, ये चीज डब्बा हो गई है. तीन बात समझ में आई? श्योर? A round of thumbs up if it's clear now. Chrono clear हो गया, anachronis clear हो गया. A round of thumbs up from everyone. बहुत बढ़िया. तो एक बार जरा रिकैप कर लें. कौन से वर्ड रूट्स देखे टीम? जल्दी जल्दी. सॉम कौन सा वाला? सॉम, अब तुमने मेरे को बताना है. सॉम इज द वर्ड रूट फॉर, लेट मी नो. स्लीप, शाबाश, बहुत बढ़िया. लॉक्यू कौन सा वाला टीम? लॉक्यू कौन सा वाला? स्पीकिंग एंड टॉकिंग, शाबाश शाबाश. थियो कौन सा वाला? थियो कौन सा वाला? गॉड एंड रिलीजन, शाबाश शाबाश, वेरी गुड. क्रोनोस कौन सा वाला? टाइम वाला, शाबाश. सत्यम, जरूरी नहीं है लंबा टाइम होगा. क्रोनोस टाइम, पक्का? वो क्रॉनिक में लॉन्ग टाइम है बेटा. सत्यम, क्रॉनिक में लॉन्ग टाइम हो रहा है ना? श्योर? अच्छा, अब मैं ना कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूं और आपने, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. आपको मैं 2 मिनट दूंगा, कुछ वर्ड्स लिखूंगा और आपने उनके मीनिंग ढूंढने हैं. पक्का? इन्हीं वर्ड रूट से रिलेटेड है टीम. शैल वी स्टार्ट? रेडी? इंटरेस्टिंग होगा लेकिन ढूंढना पड़ेगा वर्ड का मीनिंग. ओके, आई एम राइटिंग द वर्ड्स और तुमने ना मेरे को कनेक्शन बताना है कि वर्ड रूट्स के साथ कैसे कनेक्ट हुआ वो वर्ड. इंटरनेट पे आप मीनिंग चेक कर सकते हो, नोट करो. एक वर्ड है, नोट डाउन टीम.
हाँ जी, भारी भरकम लग रहे हैं, चेक करो और मेरे को कनेक्शन भी बताना वर्ड रूट्स के साथ, ठीक है? 2 मिनट जल्दी से, टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, फाइंड आउट द मीनिंग्स. Okay, God is present in everything. God, okay. Shabash Udit. Very good, very good. ये क्या निकला टीम? Okay. Circumlocution. हाँ. Pantheism. God is in everything. Okay. Indirect language to express an idea. Okay. Udit. सॉन्ग वाला इंटरेस्टिंग है, सॉन्ग वाला काफी इंटरेस्टिंग है, ढूंढो जरा. Somnambulism. शाबाश सत्यम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. That is what it is. That is what it is. Good, good. Shabash. Now it's good to see everyone is participating. I'm really happy now. बहुत बढ़िया. अब गाड़ी ट्रैक पे आ गई है. Speaking alone. Very good, very good, Vyan. शाबाश, शाबाश. हाँ, स्लीप डिसऑर्डर है उदित, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो कौन सा वाला है? इस पे फोकस करो जरा, इस पे फोकस करो. एम्ब्यूल, एम्ब्यूल, यही एम्ब्यूल तो मैं एम्बुलेंस में भी नजर आता है टीम. क्लू, यही एम्बुलेंस में भी नजर आता है. when you amble, when you amble down the road, when you amble down the road, यही वाला वर्ड रूट वहां पे भी है. ओके, हाँ उदित, एम्ब्यूल वाला कौन सा? वॉकिंग वाला. शाबाश, शाबाश, बिल्कुल व्यान, वेरी गुड. अब करें डिस्कशन स्टार्ट, शैल वी? ढूंढ लिए सारे? फोर्थ वाला ढूंढो, इंटरेस्टिंग है. व्यान थर्ड वाला है बेटा, सोमनाम्बुलिज्म, स्लीप वॉकिंग. फोर्थ वाला, फोर्थ वाला व्यान लॉक्यू बोलने वाला है, लॉक्यू बोलने वाला है, बिल्कुल. अच्छा, अब जरा देखते हैं टीम, नोट डाउन. फोन अलाउड, एग्जैक्ट, बिल्कुल सत्यम, शाबाश, फैंटास्टिक, कीप इट अप टीम. ऐसा ही पार्टिसिपेशन चाहिए. ऐसा पार्टिसिपेशन होगा तो बड़ा ऑफ कोर्स आसान होगा चीजों को समझना. इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी सुपर फन एंड यू लर्न अ लॉट. ओके, चलो जरा देखते हैं. पैन, टीम नोट डाउन. पैन का मतलब क्या? नोट करो. ऑल, एवरी, नोट करो टीम. थी हो तुम्हें पता है, थी हो तुम्हें पता है. गॉड, रिलीजन, गॉड, रिलीजन. एक मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनो.
गॉड इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गॉड। पैंथीज्म का एक मतलब ये है, सब कुछ भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, सब कुछ भगवान है, भगवान ही सब कुछ है। ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। हाँ है ना, एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इज इन एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इज एवरीथिंग। एक मीनिंग ये है। ज्यादा कॉमन वाला पता है कौन सा है? बिलीफ और एक्सेप्टेंस, बिलीफ इन ऑल रिलीजन्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, बिलीफ इन ऑल रिलीजन्स। जब आप सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, आप सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, नोट डाउन टीम, respect for all religions, respect for all religions. Does that make sense? Is it clear to all? इतनी बात समझ में आई? टीम, पैन का मतलब क्या है? पैन मीन्स ऑल, एवरी। हाँ बिल्कुल उदित, बिल्कुल उसी जैसा है, शाबाश। इनफैक्ट उससे थोड़ा सा और आगे, इस तरह सोचो। पॉली का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मैनी। हाँ है ना, ये उससे भी एक स्टेप आगे चला गया उदित, इस तरह समझो। पैन का मतलब ऑल, आप सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो। इज दैट क्लियर? 100% क्लियर? श्योर? उसी जैसा है, थीम वही है। इसमें आप कह रहे हो थोड़ा और जोर से, आप सभी ऑल रिलीजन्स में बिलीव करते हो। पैन, पैन नोट कर लिया है? पैन का मतलब क्या टीम? ऑल एंड एवरी। पैन मीन्स ऑल एंड एवरी। अब जरा देखो, जब होल्ड ऑन, हम कुछ ऐसा कहते हैं ना, दिस कंपनी हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस। कई बार ऐसा कहा जाता है, दिस फर्म हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस। सो व्हाट डू वी मीन बाय अ पैन इंडिया प्रेजेंस? टीम, व्हाट डू वी मीन बाय दिस एक्सप्रेशन, दिस कंपनी हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस? जल्दी जल्दी बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश ध्यान, वेरी गुड उदित, एग्जैक्टली सत्यम। प्रेजेंट एवरीवेयर इन इंडिया, हर जगह, इंडिया में हर जगह मौजूद, प्रेजेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री, प्रेजेंट ऑल अक्रॉस इंडिया, प्रेजेंट ऑल अक्रॉस इंडिया, प्रेजेंट एवरीवेयर इन इंडिया। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, करेक्ट हो रहा है टीम। पैन का मतलब ऑल, एवरी। अच्छा, अब जरा देखो, तो पैंथीइज्म क्या था? बिलीफ इन ऑल रिलीजन्स, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। अब होल्ड ऑन टीम, तुम ना इस वर्ड का मीनिंग चेक कर सकते और मेरे को मीनिंग बताओ। हाँ जी, look up the word, tell me its meaning। अभी पैन से कनेक्ट हो जाएगा। शाबाश सत्यम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एवरीवन लेट मी नो, फाइंड आउट। पैनेसिया, गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैनेसिया? पैन से कैसे कनेक्ट हो रहा है? जल्दी से सोचें, दिमाग लगाएं, फाइंड आउट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सत्यम उदित, शाबाश। पैनेसिया पता है क्या होता है? अ क्योर ऑल, इट्स अ क्योर ऑल, इट क्योर्स एवरी डिजीज, इट क्योर्स एवरी प्रॉब्लम। हाँ है ना, रिमेंबर, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये पैनेसिया वाला कनेक्शन जरा देखो। रामायण में, रामायण में वो होता है ना, लक्ष्मण एक बार क्या हो जाते हैं, लक्ष्मण एक बार बैटलफील्ड में, लक्ष्मण इज हर्ट, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। हाँ है ना, मेघनाथ के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, इंद्रजीत के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं लक्ष्मण, और बीच में लक्ष्मण बिकम्स इंजर्ड, और फिर हनुमान जी को कहा जाता है, बिकॉज ही इज बैडली हर्ट, सिर्फ एक ही चीज है जो उन्हें बचा सकती है, एक ही चीज है जो उन्हें बचा सकती है, और वो ऐसी चीज है वो सारी प्रॉब्लम्स को क्योर कर देती है। वो ऐसी चीज है सारी की सारी डिजीजेस को एक झटके में खत्म कर देती है। तो उस टाइप की चीज को व्हाट डू यू कॉल दैट टीम? व्हाट डू यू कॉल दैट? पैनेसिया। सो पैनेसिया इज अ रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, इट्स अ क्योर for all diseases. Are you with me? Is it clear? बात समझ में आई? पैन के साथ कनेक्ट कर रहे हो उदित? डिजीजेस, प्रॉब्लम, सबका क्योर बहुत बार इस तरह से यूज किया जाता है, दैट इट इज व्हाट, इट इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो डिजीजेस के साथ साथ प्रॉब्लम्स, कोई टेंशन नहीं, पैनेसिया प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज किया जाता है।
पक्का टीम, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, पैन वाला कनेक्शन समझ में आ गया? पैन ऑल एवरी, दिस कंपनी हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस, प्रेजेंट एवरीवेयर इन द कंट्री। शाबाश। पैंथीइज्म, ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट, respect for all religions, acceptance of all religions, belief in all religions. अच्छा होल्ड ऑन, ये मैथ में सर्कम तो बहुत आता है यार, रिमेंबर सर्कम सर्कल, इससे भी अच्छा सर्कमफेरेंस, हटाओ सब कुछ, सर्कमफेरेंस। यार सर्कमफेरेंस तो बता दो, सर्कमफेरेंस तो बता दो, सर्कमफेरेंस में सर्कम आ रहा है। सर्कम का मतलब क्या होता है टीम, नोट करो। सर्कम मीन्स राउंड अराउंड, circum means round around, note karo। circum as a word root, team, circum as a word root means round around, round around, circum। देखो जरा, थोड़ा सा मैथ खेलते हैं। ये ट्राइंगल है, इसके आसपास मैंने ड्रॉ कर दिया। if I draw a circle around this triangle, if I draw a circle around this triangle, what will you call it? Encircle or circumcircle? Guys, what will you call it? Encircle or circumcircle? जल्दी जल्दी बता दो यार, ये तो आता है तुम लोगों को। नहीं, सर्कमसर्कल ये चारों तरफ बना हुआ है ना, इनसर्कल तो अंदर बनता है उधर, ये ट्राइंगल के बाहर बना हुआ है। ये क्या है? सर्कमसर्कल है। क्या है बेटा? सर्कमसर्कल है, राउंड अराउंड, राउंड अराउंड, हाँ है ना, चारों तरफ। तभी तो सर्कमफेरेंस, सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है, सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कम मीन्स राउंड अराउंड। अब व्हाट डू वी मीन बाय सर्कमलोक्यूशन? लॉक्यू क्या था टीम? लॉक्यू क्या था? जल्दी जल्दी बता दो। लॉक्यू, बोलना, स्पीकिंग, टॉकिंग, शाबाश शाबाश। सो व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन? व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन? आप गोल गोल बातें घुमा रहे हो, गोल गोल, राउंड अराउंड, शाबाश शाबाश, घुमा घुमा के बात करना, वेरी गुड यार, यही है। टू टॉक इन सर्कल्स, टू टॉक इन सर्कल्स, टू गो अराउंड इन सर्कल्स, टू गो अराउंड इन सर्कल्स। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्सप्रेशन होता है ना यार, बीटिंग अराउंड द बुश। बिल्कुल क्रिश, घुमा के बात करना। तो आप ज्यादा वर्ड्स यूज करोगे, कम वर्ड्स यूज करोगे ऐसा करते हुए? ज्यादा वर्ड्स यूज करोगे, कम वर्ड्स यूज करोगे? जल्दी जल्दी बता दो। आप जरूरत से ज्यादा वर्ड्स यूज करोगे, हाँ है ना, क्योंकि आप सीधी बात तो कर नहीं रहे हो, आप बात गोल 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 घुमा रहे हो, बात गोल 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 घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, हाँ है ना, यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हो, आप सीधा पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, उसके आसपास घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, बातें घुमा रहे हो। श्योर, सीधी बात नहीं कर रहे हो। यू आर टॉकिंग इन सर्कल्स, यू आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, you are beating around the bush. Note कर लो, to beat around the bush, that is circumlocution, to talk in circles, beating around the bush, हाँ है ना, beating around the bush। तो आप ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहे हो, अगर बात सीधी करते तो कम वर्ड्स बोलने पड़ते। यहाँ पे आप बातें घुमाए जा रहे हो, जिससे पॉलिटिशियंस करते हैं ना यार, सीधी बात का सीधा जवाब थोड़ी देते हैं, आसपास बातें घुमाते रहते हैं, आसपास बातें घुमाते रहते हैं। दे बीट अराउंड द बुश, हाँ है ना, पक्का, श्योर। सो नोट कर लो। देखो सर्कमलोक्यूशन किस तरह यूज कर सकते हो, कुछ कुछ ऐसा लिख सकते हो। सर्कमलोक्यूशन टीम, सर्कमलोक्यूशन इज, circumlocution is an essential qualification, is an essential qualification। थोड़ा सा सरकाजम बचा रहा हूँ, थोड़ा सा सरकाजम बचा रहा हूँ मैं। circumlocution is an essential qualification for entering politics, for entering politics, हाँ है ना, बातें घुमानी पड़ती है यार, सीधी बात नहीं कर सकते हो, बातें घुमानी पड़ती है। श्योर, circumlocution for entering politics। टीम, राउंड ऑफ थम्स अप। अच्छा, सर्कमलोक्यूशन सामने आ गया तो
गुड, जल्दी से राउंड ऑफ थम्स अप। अगर बात समझ में आ गई तो। अच्छा यार, वो वर्ड कौन सा था वो जो बहुत अच्छा बोलता है, जो अपने आप को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है, उसके लिए कौन सा वर्ड था? द वन हु इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, उसके लिए कौन सा वर्ड था डी? शाबाश, वेरी गुड सत्यम, एग्जैक्टली उदित। वो जो बहुत अच्छा बोलता है वो कौन है? वो एलोक्वेंट है। वो जो बहुत अच्छा बोलता है वो एलोक्वेंट है। वेरी गुड। लॉक्यू का मतलब क्या था? स्पीकिंग एंड टॉकिंग। और जो ज्यादा बोलता है वो कौन है? जो ज्यादा बोलता है वो कौन है? जो ज्यादा बोलता है वो कौन है? तीन, जो ज्यादा बोलता है वो कौन है? वो लोक्वेशियस है। ओके, अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि हम ज्यादा बोलने की बात कर रहे हैं, लिसन टू बी वेरी वेरी केयरफुली। इसके लिए ना एक इडियम होता है। नाउ आई एम राइटिंग दैट इडियम डाउन, उसमें एक वर्ड मिसिंग है, तुमने वो वर्ड कंप्लीट करना है। इंटरनेट की तुम मदद ले सकते हो, ठीक है? टॉक अ डैश स्ट्रीक, डैश में वर्ड फिल करना है। व्हेन यू, आई एम रेफरिंग टू व्हाट? ज्यादा बोलना, ज्यादा ज्यादा बोलना। अगर आप ज्यादा बोलते हैं, सो समवन में से यू टॉक, एक वर्ड आएगा यहाँ पे, स्ट्रीक से पहले एक वर्ड आएगा। अच्छा, क्लू, इट्स द नेम ऑफ अ कलर। शाबाश बयान, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सत्यम, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। टीम, शाबाश उदय, गुड, कूल कूल, स्मार्ट। टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, नोट करो। To talk a blue streak, what does it mean? To speak a lot. To speak a lot, and that too very fast. To speak a lot. To speak a lot at a fast pace. To speak a lot at a fast pace. इतनी बात समझ में आई? To speak a lot at a fast pace. कभी कभी कपिल शर्मा जब मूड में होता है वो ये करता है, he talks a blue streak, he talks a blue streak, talks a lot at a fast pace. Pakka, that is when you talk a blue streak. There used to be this stand-up comedian. There used to be this stand-up artist. He has returned. He has returned. He has made a comeback. Shekhar Suman. मेरे जमाने में मतलब he has made a comeback once again. ठीक है, अब नजर आएगा तुम्हें. He is able to talk a blue streak. बहुत तेजी से, बहुत कुछ स्पीड पे बोल जाता है. And he speaks well. So he is that clear? Pakka. To speak a lot at a fast pace. That is blue streak. चले आगे. Sure. समझ में आ रही है बात? इडियम्स भी साथ साथ, इडियम्स भी साथ साथ, थोड़े थोड़े बीच बीच में याद करने हैं टीम. टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, टू स्पीक अ लॉट. सॉम, सॉम का मतलब क्या था टीम? सॉम का मतलब क्या था? सॉम, स्लीप वाला. शाबाश बयान, शाबाश सत्यम, बिल्कुल उदित, स्लीप वाला. अच्छा, एम्बुलेंस क्या करती है? Option, give me a second. Give me a sec. Okay. Team, am I visible? Am I visible? Am I audible? Let me know quickly if I am visible, if I am audible. Okay, बढ़िया बढ़िया. Everything is visible, audible, fantastic. अच्छा team, हाँ जी, now tell me. Now tell me. जल्दी से बताएं. एम्बुलेंस क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पेशेंट्स को ट्रांसफर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है. Carries the patient. Ambule. Ambule is the word root for what? Ambule is the word root for movement and motion. Note down. Ambule is the word root for movement and motion. Ambule, movement, motion. Theme, is that clear? Ambule, movement, motion.
Guys, what is somnambulism? Guys, what is somnambulism? Sleepwalking. Somnambulism क्या है team? Sleepwalking है. Can you relate to that? Ambule moves the patient from one place to another. Guys, is everything clear? Am I audible? Am I visible? Okay, बहुत बढ़िया. So somnambulism, sleep walking. अच्छा, sleep talking वाला कौन सा था? वो वाला वर्ड कौन सा था? sleep talking वाला टीम, sleep talking वाला वर्ड कौन सा था? sleep talking वाला वर्ड कौन सा था टीम? Can you recall that? Somniloquence. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Somniloquence, sleep, yes. Somniloquence, sleep talking. Somniloquence, sleep talking. Shabash, shabash. And what is somnambulism? Somnambulism is sleep walking. Sure? बहुत बढ़िया. अच्छा टीम, होल्ड ऑन. एक बात बताओ, ये सॉली का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी. जरा नोट करो, सॉलिटरी, सॉलिट्यूड. सॉली मतलब, शाबाश, वेरी गुड उदित, फैंटास्टिक बेटा, बहुत बढ़िया. ठीक है, सॉली मीन्स लोन, अलोन. नोट डाउन टीम, सॉली इज द वर्ड रूट फॉर लोन, अलोन. सॉली, लोन, अलोन. सॉलिटरी, सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब क्या टीम? अकेलापन. बीइंग अलोन, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन. बीइंग अलोन, द स्टेट ऑफ बीइंग लोनली. बीइंग अलोन, द स्टेट ऑफ बीइंग लोनली. अकेलापन. क्या बेटा? अकेलापन. दैट इज सॉलिट्यूड. डू यू अग्री विद मी टीम? सॉलिट्यूड का मतलब क्या? सॉलिट्यूड मीन्स बीइंग अलोन. सेंटेंस में किस तरह यूज करेंगे? सेंटेंस बना के दिखा सकते हो टीम? सॉली का मतलब क्या? सॉली मीन्स लोन, अलोन. सॉलिट्यूड, बीइंग अलोन. नोट डाउन. कुछ इस तरह लिखेंगे, I prefer solitude. Note down team, I prefer solitude. I prefer solitude to the company of. I prefer solitude to the company of fools. I prefer solitude to the company of fools. टीम में क्या कह रहा हूं यहां पे इस सेंटेंस में? What am I saying? What am I saying? I prefer solitude to the company of fools. What am I saying in this sentence? What do I prefer? What do I prefer? मैं अकेला रहना प्रेफर करता हूं. मैं अकेला रहना प्रेफर करता हूं बजाय कि, yes, I prefer being alone. I prefer being alone rather than being in the company of dimwits, rather than being in the company of foolish people. Is that clear? अच्छा, अब जरा रिलेट करो. Solly, lone, alone. Cool. Team, so what is soliloquy? What is soliloquy? Locu, बोलना. Speaking, talking. Soliloquy, अकेले में बोलना. वेरी गुड बयान. अकेले खुद से बातें करना. अकेले खुद से बातें करना. वो क्या है? वो क्या है? To talk to yourself. To talk to yourself. When you talk to yourself, अकेले में खुद से बातें कर रहे हैं. What is that team? That is soliloquy. छोटे बच्चे करते हैं. Have you seen that happening? कई बार ना 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा ना अकेले में खुद से बात कर रहा होता है. मिरर के सामने खड़ा होता है बहुत बार और वो खुद से बातें कर रहा होता है. What is that team? That is soliloquy. सास बहू सीरियल में भी कई बार हो रहा होता है. सास बहू सीरियल में वो कैरेक्टर ना अकेले खड़ा होता है. वो कैरेक्टर अकेले खड़ा होता है और खुद से बात कर रहा होता है. श्योर. अब मुझे अपना अगला कदम उठाना होगा. अब मुझे अपना अगला कदम उठाना होगा. अब मुझे, यस, अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी. वैसे वाला पक्का. तो वो क्या है टीम? Soliloquy. Shall we move ahead? Team, shall we move ahead? A round of thumbs up if everything is clear. और अब तक जो पढ़ा है वो सब समझ में आ गया है. A round of thumbs up. Fantastic, fantastic. Cool, cool.
तो नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं टीम, नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। तो रोना नहीं है कि नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमें नहीं आते, रोना नहीं है टीम। पैशन, पैशन चाहिए, टाइम जाना यार। टेम्पोर, टेम्पोर इज द वर्ड रूट फॉर टाइम, नोट करो। टेम्पोर एक और वर्ड रूट है, कौन सा वाला? टाइम वाला। कौन सा वाला टीम? टाइम दिखाता है। अगर कोई चीज थोड़े टाइम के लिए करनी हो, जरा रिलेट करो, टेम्पोर वाला कौन सा वर्ड रूट हो, कौन सा वाला वर्ड होगा? कोई चीज थोड़े टाइम के लिए है, ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। टेम्पररी, आसान वाला, उदित, टेम्पररी है वो चीज, टेम्पररी ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, टेम्पररी ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। टेम्पोर, टेम्पोर इज द वर्ड रूट फॉर व्हाट बेटा? टाइम। हाँ या ना? अच्छा, कोई चीज मॉडर्न है, कोई चीज मॉडर्न है, आज के टाइम की है, कौन सा वर्ड होता है वो? टेम्पोर वाला। क्लू, सी से स्टार्ट होता है, वाई पे खत्म होता है। अब तो बता दो सारे। कोई चीज मॉडर्न है, आज के टाइम की है, सी वाला वर्ड जो वाई पे खत्म होता है, जिसमें टेम्पोर भी आता है। सोचो, दिमाग लगाओ, आता है तुमको वर्ड? सबको आता है, आई एम श्योर। सी वाला जो वाई पे खत्म होगा, जिसका मीनिंग है आज के टाइम का, मॉडर्न, प्रेजेंट डे, आज के टाइम का। टेम्पोर भी आ रहा है, दिमाग लगाओ, सोचो। वेरी गुड व्यान, शाबाश शाबाश। सब जल्दी से व्यान का कमेंट पढ़ो, सब जल्दी से व्यान का कमेंट पढ़ो। कौन सा आया बेटा? वेरी गुड, कंटेम्पररी, कंटेम्पररी। व्हाट्स द वर्ड टीम? द वर्ड इज कंटेम्पररी। कोई टेंशन नहीं व्यान, नो प्रॉब्लम। कंटेम्पररी, इज दैट क्लियर टीम? टेम्पररी फॉर अ शॉर्ट टाइम, टेम्पररी फॉर अ शॉर्ट टाइम। कंटेम्पररी मतलब क्या? बिलोंग्स, इसके दो मीनिंग्स है टीम, इसके दो मीनिंग्स है। एक मीनिंग है, कौन सा वाला? कंटेम्पररी का मतलब मॉडर्न, प्रेजेंट डे, आज के समय का, मॉडर्न प्रेजेंट डे, आज के टाइम का। श्योर? कंटेम्पररी ऑल्सो मीन्स एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। श्योर? इतनी बात समझ में आई? देखो जरा, व्हेन आई से कंटेम्पररी आर्ट, कंटेम्पररी लिटरेचर, मैं कौन से आर्ट, कौन से लिटरेचर की बात कर रहा हूं? पुराने वाले लिटरेचर के की बात कर रहा हूं या मॉडर्न? शाबाश उदित, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज के टाइम का, मॉडर्न, कंटेम्पररी, शाबाश। प्रेजेंट डे, प्रेजेंट। इट ऑल्सो मीन्स those things that belong to the same time, those things that belong to the same time, those people who belong to the same time, उन्हें क्या कहा जाता है? कंटेम्पररीज। इमेजिन टीम, इमेजिन करो जरा, गांधी, महात्मा गांधी, गांधी जी और अडोल्फ हिटलर दोनों कंटेम्पररीज हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन एवर, वन ऑफ द most compassionate and kind people ever, if not the kindest man ever, वो इंसान। और सबसे बड़ा, प्रैक्टिकली सबसे बड़ा वो जो मास मर्डरर है, एडोल्फ हिटलर, वो दोनों एक टाइम पे सेम टाइम जोन में सेम प्लैनेट पे थे। गाइस, कैन यू सी दैट? मतलब हाउ पैराडॉक्सिकल दिस इज इट नॉट? बात समझ में आ रही है? So team, contemporary also means belonging to the same time. So I can say something of this sort. Team, note करो जरा। Pandit Nehru, note down this sentence. Pandit Nehru and Sardar Patel. Pandit Nehru and Sardar Patel. Pandit Nehru and Sardar Patel were Pandit Nehru and Sardar Patel were contemporary freedom fighters. Pandit Nehru and Sardar Patel were contemporary freedom fighters. That means what? जल्दी से बताओ, यहाँ पे कंटेम्पररी का मतलब मॉडर्न है क्या? टीम, यहाँ पे कंटेम्पररी का मतलब मॉडर्न है क्या? जल्दी जल्दी बता दो गाइस, यहाँ पे कंटेम्पररी का मतलब मॉडर्न है? ना ना, ध्यान नहीं, ध्यान से सोचो। सेम टाइम है। फ्रीडम फाइट, फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, सोचो, दिमाग लगाओ। वेरी गुड क्रिश, वेरी गुड सत्यम।
Pandit Nehru and Sardar Patel were दिखा रहा है past time, but they belong to the same time. They belong to the same time. बात समझ में आई टीम? They were present at the same time. They are not modern. You know, these men died long ago. These men died long ago. I know. But they belonged to the same time. They were contemporary freedom fighters. Are you with me? Is that clear? 100% clear? बहुत बढ़िया, शाबाश. ओके, डिड का मतलब क्या? टू स्पीक, बोलना. ये एक और वर्ड रूट है, बोलना. ये एक और वर्ड रूट है, बोलना. अब देखो जरा, डिक्टेशन. मैम बोलती थी, आप लिखते थे. मैम बोलती थी, आप लिखते थे. डिक्टेशन. कैन यू अंडरस्टैंड दैट? नोट करो बेटा. टेम्पोर इज द वर्ड रूट फॉर टाइम. Tempor, word root for time. Dict is the word root for speak. Dictation, मैम ने बोला, आपने लिखा. अच्छा, डिक्टेटर में भी आ रहा है. डिक्टेटर में भी आ रहा है डिक्ट. हाँ है ना? डिक्टेटर ने जो कह दिया बॉस, वो मानना पड़ेगा. उसके आगे चू चू नहीं कर सकते हो. वो डिक्टेटर है बॉस. वो जो कह देगा वो मानना पड़ेगा. वो जो कह देगा वो मानना पड़ेगा. श्योर? और नहीं मानोगे तो बैंड बजा देगा. वो डिक्टेटर है. बात समझ में आई? हाँ ना? वो जो कहेगा, whatever he speaks has to be obeyed. Whatever he says has to be followed. He is a dictator. Make sense? 100% clear? Guys, is it clear to all? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, फैंटास्टिक. तो वर्ड रूट्स हेल्प करते हैं ना यार, याद होता है ना? चीजों को कनेक्ट करके जल्दी से याद करने का तरीका है मस्त वाला वर्ड रूट. अच्छा, बेने का मतलब क्या? बेने मीन्स गुड. अच्छा उदित, बिल्कुल. डिक्ट का मतलब क्या? टू स्पीक, बोलना. डिक्टेटर, जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा. उसने जो कह दिया वो मानना ही पड़ेगा. इतनी बात समझ में आ गई बेटा? Dict means to speak. So whatever a dictator says, whatever a dictator speaks, वो बात माननी पड़ती है. श्योर? बहुत बढ़िया, शाबाश. Bene means what बेटा? Bene means good. Bene, good. तो अब जरा देखो, अगर बेनिफिट हुआ, एडवांटेज मिला, बेने मीन्स क्या? गुड. It proves to be good to you. If something proves to be good to you, if something proves to be good for you, what is it that you get? You get some benefit out of it. हाँ है ना? क्या मिल गया टीम? बेनिफिट मिल गया. It proved to be good to you. It proved to be beneficial for you. अरे बेनिफिशियल आ गया. बेनिफिशियल आ गया ना टीम? देखो जरा, बेने, बेने का मतलब क्या? बेने मीन्स गुड और वेल. नोट करो, बेने, गुड, वेल, ये वाला. बेने, गुड, beneficial. It proved to be beneficial. You got benefit out of it. You got benefit out of it. Bene means good. Clear? Sure? चले आगे टीम. 100% clear? पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, क्रेसी, क्रेसी, क्रेसी का मतलब क्या टीम? क्रेसी का मतलब क्या? क्रेसी मीन्स रूल. वेरी गुड उदित, शाबाश. रूल और गवर्नमेंट. क्रेसी मीन्स रूल और गवर्नमेंट. क्रेसी, रूल, गवर्नमेंट. अब जरा देखो, अब जरा देखो, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी रूल है. किसका रूल है? किसकी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी किसका रूल है? किसकी गवर्नमेंट है? वेरी गुड उदित, बिल्कुल सही. पीपल्स गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people and for the people. Democracy, a government of the people, by the people and for the people. Note करो, demo is the word root for people.
नोट डाउन टीम. डेमो, वर्ड रूट फॉर व्हाट, नोट कीजिए. वर्ड रूट फॉर पीपल. कूल. डेमो का मतलब क्या है टीम? जल्दी जल्दी. डेमो का मतलब क्या? डेमो का मतलब क्या? क्विकली. पीपल. वेरी गुड. क्रेसी का मतलब क्या? क्रेसी का मतलब क्या? रूल. गवर्नमेंट. शाबाश शाबाश. रूल. गवर्नमेंट. अब जरा देखो, अब जरा देखो. पैन का मतलब क्या था डीन? पैन का मतलब क्या? जल्दी से बताओ. पैन मीन्स ऑल. अब जरा देखो. होल्ड ऑन. वर्ड रूट्स का मैजिक. वर्ड रूट्स का मैजिक देखो. लुक एट द मैजिक. पैंडेमिक. ये तो तुमने सुना हुआ है. ये तो तुमने सुना हुआ है. डेमो. कनेक्ट करो जरा. कनेक्ट करो. ऑल. हाँ है ना. all people, when all the people become sick at the same time, when all the people become sick at the same time, सभी लोग एक साथ बीमार हो गए. उस बीमारी को हमने क्या कहा? टीम. वर्ड रूट्स का मैजिक देख रहे हो. all the people become sick at the same time. What's that disease? That disease is a pandemic. COVID. Remember? COVID, Corona. All the people became sick at the same time. हाँ या ना? बात समझ में आई? Cool. Fantastic. So now team, as I promised, as I said, connect कर लेते हैं. So now you can raise your hands and whatever questions you have, जो भी कोई question दिमाग में आ रहा है, guidance चाहिए, बिल्कुल. So now you can raise your hand, we can connect, we can speak. बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं. कोई चीज दिमाग में आ रही है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो. Somebody wanted to know तैयारी कैसे करनी है. Team, somebody wanted to know the strategy. कुछ चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी होंगी. Okay, Satyam beta, you wanted to know what needs to be done on a regular basis now? Okay, चलो. Books, newspapers. हाँ. What books, what newspapers? Good बयान. चलो देखते हैं. थोड़ा सा एक प्लान बनाते हैं. थोड़ा सा एक प्लान बनाते हैं. देखो क्या करना है टीम. स्टडी प्लान. और इम्पोर्टेंट बात, स्टडी प्लान फॉलो भी करना है. सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, फॉलो भी करना है. ठीक है. तो देखते हैं कुछ कुछ चीजें. कौन सी बुक, कौन सा न्यूज़पेपर. एक तो वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है. अगर वर्ड रूट्स को मास्टर करना है, विच यू शुड ट्राई टू, तो वोकैबुलरी के लिए ना एक अच्छी सी बुक है, वर्ड पावर मेड इजी. वर्ड पावर मेड इजी. तो ये हेल्प करता है तुम्हें वर्ड रूट्स सीखने में. वर्ड पावर मेड इजी. The name of the writer is Norman Lewis. Word Power Made Easy. Specifically किसके लिए टीम? Word roots सीखने के लिए हेल्प करती है बुक. बहुत यूजफुल है. तो इसको पढ़ना स्टार्ट करना है. What I suggest is टीम वोकैबुलरी के लिए डाउनलोड दिस एप्लीकेशन. नोट डाउन. एप्लीकेशन है, फोन पे डाउनलोड कर लेना. मेरियम वेबस्टर एप्लीकेशन फोन पे डाउनलोड करना है. डाउनलोड दी ऐप. साइन अप कर लेना. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. साइन अप कर लेना. और साइन अप करते समय गलती से भी कुछ पे मत कर देना. गाइस रिमेंबर, वी आर इंडियंस नेवर एवर पे फॉर एनी डिजिटल प्रोडक्ट. हाँ ना. वी नेवर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, ठीक है, मेरियम वेबस्टर पे एप्लीकेशन पे कोई पे वे मत कर देना गलती से भी. फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे. ठीक है. डिक्शनरी है यार, वर्ल्ड फेमस डिक्शनरी है. ठीक है. जैसे ऑफ कोर्स ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, उस लीग में. इंपॉर्टेंट बात. उसके बाद ना साइन अप करके व्हेन यू ओपन द एप्लीकेशन, स्वाइप लेफ्ट. इंपॉर्टेंट बात, नोट कर लो ये सारे स्टेप्स. स्वाइप लेफ्ट और फिर एक सेक्शन आएगा. टीम सेक्शन कौन सा आएगा? हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर वोकैबुलरी. हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर
वोकैबुलरी। इस सेक्शन पे क्विजेस अटेंड कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट एप्लीकेशन डाउनलोड की, साइन अप किया, साइन अप करने के बाद ओपन किया एप्लीकेशन, ओपन करने के बाद स्वाइप लेफ्ट, हाँ एग्जैक्टली स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप लेफ्ट करने के बाद हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर वोकैबुलरी सेक्शन आएगा, उस पे क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्विजेस ऑन अ डेली बेसिस, करना ही होगा, मतलब करना ही है, इसमें नो चू ची, ठीक है, इसमें नो बहानेबाजी, नॉट एट ऑल। यार वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग वोकैबुलरी इंप्रूव करोगे ना, रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी, थिंग्स विल बिकम मच मच इजियर। श्योर, पक्का ये काम करना है रेगुलरली। उसके साथ साथ क्या करना है, ये स्टडी प्लान बन रहा है हमारा, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। श्योर, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स प्रेफरेबली द हिंदू or something like the Indian Express, either of the two, the Indian Express or the Hindu, इनमें से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है, लिसन टू मी केयरफुली। टाइम्ड रीडिंग, स्टूडेंट्स टाइम्ड रीडिंग इज अ मस्ट। टाइमर सेट करना है, टाइमर सेट करना है, सेट द टाइमर। अब पहले दिन टाइमर सेट नहीं करना है टीम, होल्ड ऑन। कैसे करना है सुनो, वो जो एडिटोरियल पेज आप पढ़ते हो, आपका न्यूज़पेपर जो है, इट कुड बी द इंडियन एक्सप्रेस, इट कुड बी द हिंदू, व्हाटएवर, उसमें लेट्स से पहले दिन आपने ट्रैक किया, 2 दिन ट्रैक करो, आपको कितना टाइम लग रहा है वो एडिटोरियल पढ़ने में। लेट्स से यू रिक्वायर 10 मिनट्स, आई एम जस्ट चूजिंग अ नंबर, और लेट्स से इट इज 12 मिनट्स। ध्यान से सुनो, तो आपने पहले 2 दिन ट्रैक किया कि जब आपने ना खुद को पुश नहीं किया, आपने of course खुद को चैलेंज नहीं किया, you're not pushing yourself to read faster, then you take 12 minutes, that is your comfort zone, that is your comfort zone। अब अपने comfort zone में बैठे नहीं रहना है, अपने आप को चैलेंज करना है, पुश करना है। a third day onwards, मेरे को समझ में आ गया, 12 मिनट मेरे को लगते हैं, now I'm going to set a timer of 11 minutes। तीन बात समझ में आ रही है। how to read newspapers, बेटा एडिटोरियल पेज पढ़ना है, सत्यम पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है, और टाइमर सेट करना है। रीड करते समय कैरी अ पेन, पेंसिल, व्हाटएवर इन योर हैंड, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट यू डू नॉट नो। वो सारे वर्ड्स जो नए हैं, जो समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको अंडरलाइन करते चलो। उस समय डिक्शनरी में मीनिंग चेक नहीं करोगे सत्यम, उस समय फोन हाथ में लेके नहीं बैठोगे कि मीनिंग चेक कर लिया, ना ना ना, डोंट डू दैट। उससे क्या होगा, रीडिंग करते समय ब्रेक नहीं आना चाहिए। It has to be smooth. It has to be smooth. You have to be completely focused on Satyam, what the writer is trying to tell you. इतनी बात समझ में आ रही है, प्रोसेस समझ में आ रहा है बेटा। रीडिंग करते समय you have to maintain complete focus, nothing other than reading। आसपास वोल्केनो आ रहा है, फूट रहा है, फूटने दो। आसपास कोई घंटी बजा रहा है, बजाने दो। उस समय सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस कर रहे हो। उस समय फोन कहाँ पड़ा है कोई टेंशन नहीं, भूल गया मैं फोन कहाँ पड़ा है, 11 मिनट का मैंने टाइमर सेट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद 11 मिनट में मैं वो काम कर रहा हूँ, एक काम करता चल रहा हूँ। जो भी नया वर्ड मेरे को नजर आता है ना, तो अगर मेरे को उसका मीनिंग नहीं पता, मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया। आफ्टर आई एम थ्रू विद दिस 11 minute reading session, now I am going to write a 1-line summary। तीन बात समझ में आ रही है, जो पढ़ा है उसकी 1-line summary लिखने की कोशिश करनी है। where you will try to focus on, where you will try to focus on the essence, the gist, the essence, the gist, the crux, or very simply the main idea। main idea क्या था इस editorial का, तीन बात समझ में आ रही है। that one-line summary, one-line summary, that means in around 20 words, in around 15 to 20 words, you will try to sum up whatever you have read। प्रोसेस समझ में आ रहा है। और वो जो सारे वर्ड्स मिले आपको, अब क्या करना है, वो जो नए वर्ड्स मिले टीम, जो आपने अंडरलाइन किए थे, देन यू विल द न्यू वर्ड्स, उन वर्ड्स का मीनिंग आप चेक करोगे, उन वर्ड्स का मीनिंग आप चेक करोगे। वो सेंटेंस भी जहां पे वो वर्ड आया था, वो सेंटेंस भी आप नोट करोगे। कहाँ पे,
You will note down all this in your separate register. A word list, आप एक अलग से वर्ड लिस्ट तैयार करोगे, एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करोगे. कौन से वर्ड्स का? वो वर्ड्स जो आपको नजर आए while reading. This comes from reading. Yes or no? While reading, you came across these new words in that newspaper editorial, maybe, or maybe while reading a passage. Cool. उसके साथ साथ क्या करोगे आप? इस वर्ड लिस्ट में वो जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया है, वो जो अभी क्विज खेला था ना मरियम वेबस्टर पे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मरियम वेबस्टर वाला जो क्विज है, मरियम वेबस्टर वाला जो क्विज है जिसमें नए वर्ड्स आपको मिल रहे थे, वो वर्ड्स भी इस वर्ड लिस्ट में एंटर होंगे. आप वो वर्ड्स भी इस वर्ड लिस्ट में एंटर करोगे. What you have to do is maintain a database. Maintain a database of these words. जो भी वर्ड आपके लिए नया है. टीम ये बात समझ में आ रही है? ये 3 काम डेली बेसिस पे करना ही करने हैं. बगादरी इंप्रूव करनी है, उसके लिए वर्ड पार मेड इजी करना चाहते हो कर सकते हो. ये काम डेली बेसिस पे करना है. कौन सा? मरियम वेबस्टर एप्लीकेशन पे 2 क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, और जो भी नए वर्ड्स मिले उनको रजिस्टर में जॉट डाउन करना है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ यू विल नाउ सेट अ टाइमर. किस तरह टाइमर सेट करोगे? अब तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? प्लान समझ में आ रहा है? डी जरा भी कहीं कोई डाउट? व्हाट नीड्स टू बी डन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सत्यम को बात समझ में आ रही है? व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? उदित को ही समझ में आ गई? क्रिश, बेहान, डेली कितने वर्ड्स नोट कर रहे हैं बेटा? अराउंड नथिंग लेस देन 20. 20 तो कम से कम. 20 के ऊपर जितने, 20 प्लस, it's up to you then. 20 plus, 20 is the bare minimum. 20 is the bare minimum. Sure? But ये वो है जिससे नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल. It's the bare minimum. और important बात पता है क्या है टीम? रिवाइज भी तो करना है. रिविजन रिविजन रिविजन. अब रिविजन किस तरह करना है वो भी सुन लो. लेट्स से आज से 20 दिन बाद, 25 दिन बाद आपके वर्ड लिस्ट में कितने पेजेस हैं? लेट्स से आपके वर्ड लिस्ट में आप देयर आर अराउंड 15 पेजेस, रैंडम नंबर. तो किसी दिन आप पेज नंबर 1 से पेज नंबर 15 पे जा रहे हो. दैट्स हाउ यू मूव रिविजन करते समय. एंड समटाइम्स यू मूव इन द अदर डायरेक्शन फ्रॉम पेज नंबर 15 टू पेज नंबर 1. मेक सेंस ना? वरना क्या होगा? 1 से ना आगे चलोगे हर बार, 1 से शायद 4 पे अटक जाओगे या 6 पे अटक जाओगे, तो बाकी तो रह जाएंगे ना यार. बाकी तो रह जाएंगे, तो कई बार उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है. मेक सेंस? कॉमन सेंस ना? इतनी बात समझ में आ रही है? ये करना ही करना है. दिस मस्ट हैपन. दिस हैज टू हैपन. श्योर? क्लियर? और एक काम करना है, और एक काम करना है. वो आपके स्टडी प्लान का पार्ट है, और वो ये है टीम कि आपको RC99 डॉक्यूमेंट, आई एम गोइंग टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू. ठीक है? अच्छा, मेरा एक बार टेलीग्राम आईडी ले लो, @abhikalra1980. अब इसके बाद ना एक काम कर देना, @abhikalra1980. दिस इज माई टेलीग्राम आईडी. नोट कर लो. और तुमने अब मेरे को मेरी एज नहीं बतानी है. तुम्हें पता चल रहा है, बट यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल मी माय एज. ठीक है टीम? हाँ जी. अब @abhikalra1980. ठीक है? इस पे तुम मेरे को डीएम कर दो. डीएम में इतना जरूर लिख देना, डीएम में इतना जरूर लिख देना, IPM पाठशाला, IPM पाठशाला RC99. इतना जरूर लिख दें. I'll send you this document. RC99 क्या है देखो, समझो. It's a wonderful self-help guide for reading comprehension. RC तो 99 RC passages है इसमें. 99 RC passages है. हर रोज इसमें से एक पैसेज करना है. 1 passage a day from this guide RC99, और इसको thoroughly analyze करना है. ये काम पता है क्यों जरूरी है टीम? सत्यम बेटा, उदित, कृष, ये काम, बेहान
बेटा ये काम इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एक पैसेज अटेंड करते हो ना, देन इट एक्चुअली टेस्ट योर कॉम्प्रिहेंशन। वो जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कौन सा वाला, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, ये टेस्ट तो नहीं करता है ना यार, ये असेस तो नहीं करता है। मेरे को तो लगता है मेरे को सब समझ में आ जाता है, बट जब मैं क्वेश्चन करने जाता हूँ, मेरे को तो लग रहा था आई कुड अंडरस्टैंड 100% ऑफ इट। जब मैंने लेकिन क्वेश्चंस किए तो फिर एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, मेरे तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस ठीक हुए। तो क्या मुझे 100% समझ में आया था? कितना परसेंट समझ में आया था? 40% समझ में आया था ना, आया ना। ये इसलिए जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है। और बढ़िया बात पता है क्या है, एक तो ये आपको टेस्ट करेगा, मोर ओवर इसमें इन डेप्थ एनालिसिस दिया हुआ है। टुवर्ड्स द एंड इस डॉक्यूमेंट में यू हैव इन डेप्थ एनालिसिस, ये जरूर करना है। इट हैज टू बी डन, इट मस्ट बी डन। और आईपीएम पाठशाला पे जो भी क्विज़ेस अपलोड होंगे, ठीक है, वो आपने करना ही करने हैं। टीम, दैट्स योर study plan. This needs to be done. 1 RC passage per day from RC 99 और जो भी quizzes है वो आपने अटेंड करने। Cool. So with that, we come to the end of our discussion today. I hope you have understood everything that we discussed. A round of thumbs up. A round of thumbs up if you've figured everything out. Cool. बहुत बढ़िया. So team, with that, I'll take your leave. God bless you. Sure. फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मस्त क्लास थी आज, मस्त क्लास थी बेहान। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन बेटा, थैंक यू क्रिश। चलो गुड नाइट टीम, बहुत बढ़िया।